हाउ डू यू सी इन कमिंग 5 years किस तरह के व्हीकल्स हमें रोड्स पर दिखाई देंगे? Very recently, I saw कि मेरे घर में जो garbage van आती है, that's an EV vehicle now. So I think as the ecosystem grows, we have a lot of EV buses, EV cars, e-loaders on the road. रिसाइकलिंग के बारे में बात हो रही है. Does Battery Smart have a plan for it? Government policies and other organization working in EV space, they should see recycling of battery not as a waste management problem probably, but as a energy or resource management problem. और कौन से challenges हैं जो दिखाई देते हैं और उसको Battery Smart किस तरह से उसको टैकल कर रहा है? बहुत ही सिंपल एंड छोटे छोटे सोल्यूशंस और प्रॉब्लम्स जो हमें लगता था ड्राइवर्स को आएंगे, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं. मान लीजिए मैं बैटरी स्वैप करने के लिए जाता हूँ, मैंने एक बैटरी दी है, दूसरी बैटरी में जो ले रहा हूँ उसकी हेल्थ सेम होगी या नहीं होगी? हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट? सारे बैटरीज का SOC SOH पता होता है और हम इंश्योर करते हैं कि जो बैटरी अब हमें लगता है कि अनफिट फॉर स्वैपिंग है या फिर इसकी रेंज कम आएगी, ऐसी बैटरीज को रिटायर करते हैं. What is practically you can learn from this country? So I think what we adopted from China as well is, I think, building at scale. Swapping versus charging stations. Which one is going to win the game? I believe they'll coexist. A reason because Hello everyone, welcome to another episode of the Vision Grid. And today again, one more special episode. So today we have a guest from a startup which is creating a benchmark in the EV industry and India's biggest swapping network they have. So we have a representative from the Battery Smart. So Sumi Jain, she's representing Battery Smart today at Vision Grid. Hello Sumi, how are you doing today? Hi Sachin, I'm doing good. Great. Thanks for giving me this opportunity to Thank have me you on your for podcast. taking out time for us. Yeah, Yeah. great. Okay. So Sumi, for my audience, मेरी ऑडियंस समझना चाहती है कि सुमी जैन की जर्नी क्या रही है अभी तक और ये ईवी की जर्नी के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं. So Sachin, I come from a humble background. I'm from Madhya Pradesh. Schooling वहीं से किया, then went on to BITS Pilani to do my engineering. सब इस time engineering कर रहे थे, मुझे भी एक engineer बना था. So but BITS में realize किया कि I'm a computer science engineer. तब realize किया कि I think शायद कोडिंग तो नहीं है my cup of tea. Don't want to do that for my life. Started doing some projects or became founding members of a few clubs, got into strategy and so then I started my career with a boutique consulting firm, Manthan Advisors, got into strategy consulting. 3 साल बहुत सारे consulting projects पे काम किया, worked for one of the biggest Indian conglomerates, worked across industries, healthcare, EV, logistics, e-commerce, and so on, a lot of manufacturing industries. उसके बाद went on to OYO. OYO gave me a flavor because OYO में I was working on the supply part. तो OYO में पहली बार देखा कि franchisees के साथ कैसे काम करते हैं because होटल इंडस्ट्री हमेशा से एग्जिस्ट करती थी. But what OYO did was became a marketplace. तो कैसे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ओयो ने बनाए, उनको कनेक्ट किया विद द ट्रैवलर्स, गिव देम अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड like exponentially grew their business. So that was the first time I had worked on a franchisee sort of a setup. उसके बाद move to Uber. Uber gave me that flavor of working for the lowest then most niche category in the pyramid, drivers. बट बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज होते थे हमेशा सुनने के लिए कि किसी ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ के दे बिकेम ड्राइवर्स, या फिर दैट वाज द टाइम आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इट बिकेम नॉर्मल कि फीमेल्स भी काम कर सकती हैं. आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ फीमेल ड्राइवर्स फॉर ऊबर. आई वाज वर्किंग फॉर अ प्रोग्राम जहाँ पे हम फीमेल ड्राइवर्स की सेफ्टी कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी ensure that their training, their driving skills are top notch and things like that. So that gave me a personal connect कि शायद इस कैटेगरी के लिए या फिर गिविंग बैक टू द सोसाइटी के लिए कुछ तो करना है. Got for a very short stint work with a company where I was building their fuel and EV telematics, and that helped me understand EV better कि BMS कैसे काम करता है, EV कैसे फ्यूचर बनने वाला है. And then Battery Smart happened. So I think it has been a journey in itself, right? Amazing. So because things that I take care at Battery Smart, the entire network. So for us, network is the franchisee partners that we have and the driver ecosystem that we have.
So I think collectively looking at the entire landscape on how our franchisee partners are coming together, and I'm so excited about creating this sustainable space, ensuring कि drivers के लिए EV more affordable, more accessible हो, and drivers जिनकी शायद हम day to day earning में help कर पा रहे हैं. हम्म, Most of our drivers, one thing that is common is कि हमारे सारे ड्राइवर्स आकर कहते हैं कि बैटरी स्मार्ट के साथ जुड़ने के बाद उनकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, बिकॉज वो रोड पे अब ज़्यादा टाइम गाड़ी चला पा रहे हैं. सो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ जर्नी इन इटसेल्फ, great, lovely, एंड इट्स सुपर सेटिस्फाइंग, आई वुड से. great, lovely. 1600 swapping stations, राइट. 50 cities, 50 plus cities Right. you are already in and you are expanding still. तो जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, तो did you think that this is going to be the scene in few days? सो आई रिमेंबर जब मैं बैटरी स्मार्ट का इंटरव्यू दे रही थी, आई वॉज मीटिंग सिद्धार्थ, वन ऑफ आवर फाउंडर्स. तो हम वाइट बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी कि यार हमारा पहला स्टेशन जब जनकपुरी में दिल्ली में हमने खोला था, तो ऐसे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था स्टेशन पर, और हम उसमें लिखते थे कि पहला स्वॉप हुआ है, ये ड्राइवर ये बैटरी लेकर आया है, ये बैटरी लेके बाहर गया है. एंड व्हेन आई जॉइन, हमारे अबाउट 200 स्टेशंस थे, एंड आई सॉ दैट जर्नी कि हम 2.5 साल में, लेस देन 2.5 साल में हम 1600 स्टेशंस कर लिए हैं. वी हैव 1 लाख प्लस ड्राइवर्स. हम हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा स्वॉप्स कर रहे हैं अक्रॉस द नेटवर्क. एंड आई सॉ दैट जर्नी ऑल्सो कि जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज हुआ है, व्हेन आई जॉइन आवर मेजॉरिटी कस्टमर्स वर 3 व्हीलर्स, हम्म, बट एज गिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग, अब सबको सब कुछ 10 मिनट में चाहिए है. हम्म, तो डिलीवरीज सिर्फ, आई थिंक एक मिथ था कि स्वॉपिंग इज़ अ बिजनेस फॉर टियर 1 और मेट्रो सिटीज़. बट हमने भी ग्रेजुअली फ्रॉम मेट्रो, फ्रॉम नदर्न इंडिया, अब हम पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा 50 प्लस सिटीज़ में. हम 3 व्हीलर्स के साथ साथ 2 व्हीलर ड्राइवर्स को भी केटर कर रहे हैं. तो जैसे जैसे ये ई कॉमर्स, डिलीवरी इकोनॉमीज और ये गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो शेपिंग अ वे एंड क्रिएटिंग दैट नीड कि स्वॉपिंग ज़रूरी है, सो दैट इनकी अर्निंग्स एंड इनका टाइम ऑन रोड हम बढ़ा सकें. जब हम बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के बारे में बात करते हैं, तो आपने 200 से 1500 एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों ने फिनिश किया, तो मतलब इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर ऑपरेशंस टू इतनी स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट? राइट. सो आप हमें बताएंगे कि विच वर 1 और 2 लीवर्स जिसको आपने कहा कि पुल अप किया और दिस स्पीड ग्रो फास्टर? आई थिंक जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट लिवर्स थे, फर्स्ट वाज़ आई थिंक बीइंग असेट लाइट, बिकॉज़ एंड वी आर नॉट इनटू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. तो ओके, वी हैव पार्टनर्ड विद 100 प्लस ओईएम्स अक्रॉस द कंट्री, जिनके साथ हम या तो बैटरी या किसी फॉर्म का और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा या फिर चार्जर्स उनके लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, या फिर हम अपने सेफ्टी की जो R&D कर रहे हैं उसके लिए टूल्स बना रहे हैं. सो आई थिंक दैट गिव अस स्पीड एंड विंग्स टू एक्सपैंड. एंड देन सेकेंडली, बिकॉज हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, एंड वी वर ऑलवेज वी हैड नो क्रंच ऑफ सप्लाई. आई थिंक हम जिस भी सिटी में लॉन्च करते हैं, देर आर already enough people who are excited to become franchisee owners of battery smart. I think that helped us get that speed. But while partnering with OEMs and being on this asset light model and working on a franchisee sort of a setup, one thing that remained key and helped us maintain that speed was safety. I think हमारी company में भी हमारी safety first, second, third, that's our first core value out of the 6 we have. So that is like a supreme value that flows in the DNA of the entire team, be it our central teams, our partners, our drivers, or our field teams. Because the category that we are trying to create, तो it is very very important कि हम अगर ड्राइवर्स का चार्जिंग टाइम कम कर रहे हैं, रेन एंग्जाइटी कम कर रहे हैं, बट दैट कम्स with a lot of safety assurance that my drivers and partners in the ecosystem should have. So I think that has helped us, like sticking to that core value while we grow has helped us get the speed and momentum up. बट माय क्वेश्चन कम्स इज कि बैटरी में आग लग जाएगी, ये फियर बहुत सारे लोगों में है, पार्टनर्स में भी होगा, जो स्टेशन ओनर्स हैं, बैटरी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारी बैटरी एक ही जगह पे रखी होती है, रिक्शा ड्राइवर के पास भी वो फियर हो सकता Right, है. right. तो हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट? हम जब भी हमारे साथ कोई ड्राइवर या फ्रेंचाइजी पार्टनर ऑन बोर्ड होता है, हम उन्हें बहुत सिंपल एक एग्जांपल समझाते हैं. सीएनजी की गाड़ी में जब भी सीएनजी भर रही होती है गाड़ी में, हमें पता है, वो हम वायर्ड हो चुके हैं कि हमें गाड़ी से नीचे उतरना है जब सीएनजी भरेगी. कस्टमर में भी वो अवेयरनेस है, एंड आई थिंक फ्यूल
पंप्स में कोई भी ऑपरेटर चेंज हो जाए, कहीं भी शिफ्ट हो, कितना भी रश हो, बट वो अवेयरनेस है। हुँ, तो आई थिंक बिकॉज़ हम ये सेफ्टी फर्स्ट डीएनए के साथ एंटायर कंपनी एंड एंटायर इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो हम हर तरह से इंश्योर करते हैं सेफ्टी। सो इवन फ्रॉम चूज़िंग व्हिच ओईएम्स टू पार्टनर विद एंड इंश्योरिंग दैट वहाँ से असेट सेफ्टी आ रही है। हम अपने सारे स्टेशंस पे और सारे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स जिन भी ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, उनके रिक्शा में इंस्टॉलेशन, हमारे स्टेशंस पर इंस्टॉलेशन। Even we have internal a lot of back and forth in choosing one RCCB and MCCB as well that goes in station अच्छा, installation, right? ओके, तो हर स्टेप पे इंश्योर करना कि वो सेफ्टी है, देन इन्वेस्टिंग अ लॉट, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैटरी के लिए आइसोलेशन बॉक्स बनाए हैं कि अगर जस्ट एक बैटरी अगर आपको लग रहा है कि हीट अप कर रही है, तो प्लीज़ उसको आइसोलेट करके एक बॉक्स में रख दीजिए विच विल ओके, सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर बैटरीज, राइट? So I think investing in a lot of hardware solutions like safety racks, safety isolation tools, isolation boxes, I think that has also helped us give that confidence to our partners and drivers. Having said that, हम अपने drivers, partners की through our app, through different modes of communication, in personal audits and trainings, हम काफ़ी सारी trainings करते हैं so that they are aware how to do, what to do. हुँ, And उसके अलावा I think data is something that has helped us, ensure that safety as well. हुँ, Would sound to something, two things very unlinked, or ओके, but how data has helped us is because all our batteries come with BMS. हुँ, So हम based on that BMS हमने काफ़ी सारे preemptive alerting systems बनाए हैं. We हुँ, have a control tower that helps us, ensure that what batteries to segregate. How do we communicate that to our drivers and partners. So I ओके, think that is something, या, because the safety first DNA flows in every one of us. We have been able to educate our drivers and partners and create that awareness around safety. सो लुक्स लाइक अ फूल प्रूफ मॉडल दैट यू आर वर्किंग ऑन। I think safety, yeah, यस, that is, if you talk to any of the battery smart drivers or partners, they would not cite safety as their first concern, I'm very sure. ग्रेट, बढ़िया। ये बिज़नेस मॉडल में ये वर्क कैसे करता है? मान फ्रेंचाइज़ी जब एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को ओन करता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जाती होगी मेबी 10 लाख, 12 लाख और जब वो पेमेंट्स कलेक्शन करता है, वो ₹120 ₹100 अप्रॉक्सिमेटली वो चार्ज करता है कस्टमर से। तो ये हाउ इट इज़ वर्केबल? कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दिस? या सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ओके, दैट इज़ व्हाट आई सेड जब मैंने कहा कि फ्रेंचाइजी हुँ, पार्टनर्स को विद बैटरी स्मार्ट का जो हमारा सेटेलाइट सेटअप है, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो लगभग 3 से 4 लाख के बीच में 20 बैटरीज का सेटअप एक फ्रेंचाइजी आराम से लगा अच्छा, लेता है। एंड हम इंश्योर करते हैं कि बिकॉज हम स्टेशंस बहुत ही वी हैव अगेन अ लॉट ऑफ IoT बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें ये स्टेशन कब और कहाँ खुलना है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस इंश्योर स्टेशन का प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वी ऑल्सो इंश्योर कि डे मतलब फर्स्ट डे से दे आर अर्निंग इनफ सो दैट उनके मंथली कैश फ्लो पॉजिटिव्स हो, वो अपनी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल पा रही हूँ। सो आई थिंक दैट हैज़ हेल्ड अस ग्रो आवर नेटवर्क at that speed from सही। about one station to 1600 plus stations across 50 plus cities. कोई भी ई-रिक्शा का ड्राइवर या टू व्हीलर का ड्राइवर आपके पास आता है, आई कम फ्रॉम अ बैटरी बैकग्राउंड, Yeah. ₹35,000 के अप्रॉक्सिमेट की बैटरी आप उसको दे देते हो। तो मैं बैंगलोर था काफ़ी साल और उस टाइम पे जब मैं इनिशियल ईयर्स 2014-15 के आसपास शायद, Right. बाउंस के बहुत सारे स्कूटर्स हमने देखे कि वो Right. कहीं Parked साइड में हैं, पार्क्ड right. हैं, रोड के साइड में कोई गिरा के चला गया है। तो बैटरी में डैमेजेस के भी कुछ आपके पास में कुछ ऐसे इश्यूज़ आते होंगे या यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट अप एंड यू हैव ऑलरेडी कम नहीं, आई सम थिंक इश्यूज़ सॉल्यूशंस? आते हैं, बट हमने अकॉर्डिंगली अपनी टीम को भी मोबिलाइज़ किया है। सो हुँ, लाइक आई वाज़ सेइंग, राइट, कि हमारे सारे बैटरीज़ IoT मॉनिटर्ड हैं। हमारा पूरा रोबस्ट बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम है। हम जब किसी भी ड्राइवर को ऑन बोर्ड करते हैं, हम इंश्योर करते हैं हमारे पास प्रॉपर केवाईसी है ड्राइवर का, एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट हम जो फ्रेंचाइज़ीज़ और ड्राइवर्स दोनों से लेते हैं फॉर दैट बैटरी। सो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड अस इंश्योर कि पिल्फरेजेस, डैमेजेस हुँ, एज़ मिनिमल पॉसिबल है। अदर देन दैट आई थिंक बिकॉज़ उसको भी पता है कि बैटरी की अगर वो नई खरीदने जाएगा तो अपफ्रंट कॉस्ट बहुत
ज़्यादा है हम्म, एंड ही वुड वांट टू कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सिस्टम। डेली। तो अब हमने जैसे ड्राइवर का आइडेंटिटी बना दिया है टू टेक स्वैप्स इन आवर नेटवर्क। अच्छा। तो अगर कभी भी कोई एक ड्राइवर अगर हमारी बैटरी डैमेज कर देता है या फिर कोई बैटरी पिलफरेज हो जाती है उसके कारण, तो फिर वो ड्राइवर हमारे नेटवर्क में स्वैप नहीं ले पा रहा होगा दोबारा। तो दैट वुड इंश्योर कि ड्राइवर भी खुद नहीं चाहता कि वो हमारे सिस्टम से फॉर एनी रीज़न बैन हो जाए, हम्म, राइट? तो वो इंश्योर करेगा कि वो हमारी सारी गाइडलाइंस और सारे डूज़ एंड डोंट्स फॉलो कर रहा है, सो दैट ही कंटिन्यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम्म, तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आवर लाइक ऑनबोर्डिंग दैट हैपेंस, हमारे काफ़ी सारे ड्राइवर्स अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिलीज़ को रेफ़र करते हैं, हम्म, पार्टनर्स ड्राइवर्स को रेफ़र करते हैं। तो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ स्ट्रॉन्ग पुल फॉर अस। सही। So battery smart being a leader, I would say, in the EV industry, because राइट। EV के adoption में it's a very important factor कि swapping available हो, fast charging available हो, right? So how do you see in coming 5 years किस तरह के vehicles हमारे इंडस्ट्री में होंगे, किस तरह के vehicles हमें रोड्स पर दिखाई देंगे, एंड किस तरह के vehicles के साथ बैटरी स्मार्ट काम कर रहा है और करना चाहता है इन नियर फ्यूचर? तो बिकॉज़ हम बैटरीज़ अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रोक्योरिंग इट फ्रॉम ओईएम्स। वी आर व्हीकल वेरी, वेरी व्हीकल एग्नोस्टिक। तो वी स्टार्टेड विथ थ्री व्हीलर्स, डाइवर्सिफाइड इनटू टू व्हीलर्स। अभी हम काफ़ी सारे डिफरेंट थ्री व्हीलर्स, अब हम L5 में भी वी आर एंटरिंग, और हम टू व्हीलर्स भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट मेक हम सपोर्ट कर पा रहे हैं। सो आई थिंक हाउ आई सी दिस इंडस्ट्री शेपिंग इज़ वेरी रिसेंटली आई सॉ कि मेरे घर में जो गार्बेज वैन आती है म्युनिसिपैलिटी की, that's an EV vehicle now. Yeah. So I think as the ecosystem grows, we have a lot of EV buses, EV cars, EV e-loaders on the road, right? So I think that is how the industry is shaping us. Different type of vehicles, different battery arrangements. किसी में एक बैटरी पैक है, किसी में मल्टीपल बैटरी पैक्स हैं, कोई स्वैपिंग पे चल रहा है, कोई चार्जिंग पे चल रहा है. So I think that is how industry is evolving, and I think we listen to the market really fast. So I think that is how we'll evolve as well. ओके। सो जब हम बैटरीज की डिस्कशन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी बैटरीज बैटरी स्मार्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। अगर मैं 1500 इंटू 20 से करता हूँ तो 32,000 के आसपास बैटरीज हो जाती हैं, Yeah, राइट? yeah, तो बहुत सारी बैटरीज मार्केट में आ जाएंगी। तो देर इज़ अ लॉट दैट अबाउट रिसाइकलिंग के बारे में बात हो रही है, या right, right, सेकेंड लाइफ ऑफ बैटरीज के बारे में बात हो right. रही है। तो डज बैटरी स्मार्ट हैव अ प्लान फॉर इट? So I कि think most of our batteries have not reached their end of the life because we are a very young organization. Okay. But I think having said that, not just battery smart, even government policies and other organization working in EV space, they should see battery second life, or battery recycling of battery not as a waste management problem probably, but as a energy or resource management problem. Because अभी भी हम सारी बैटरी से काफ़ी सारा मिनरल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, हम उन्हें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प अदर यूज केसेस बिकम प्रॉब्ली एन ऑल्टरनेट ग्रिड ऑफ पावर सप्लाई. सो आई थिंक दैट इज हाउ बैटरी स्मार्ट इज सीइंग इट, एंड आई बिलीव दैट इज हाउ इंडस्ट्री शुड सी इट एज वेल. ग्रेट। मैं कुछ दिन पहले मैं एक ईवी से रिलेटेड एक सेमिनार में था, राइट. और मुझे एक ड्राइवर पार्टनर मिले। उनको एक व्हीकल फाइनेंस पे मिला था, एंड उस व्यक्ति ने कहा कि सर, ईवी फाइनेंस पे मुझे मिलने की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, और मैं पहले कमा नहीं पा रहा था ज़्यादा, और फाइनेंस पे ईवी मिलने की वजह से मेरे को बहुत अच्छी इनकम मुझे मिल गई। ही वाज मतलब दैट वाज अ फाइनेंसिंग काइंड ऑफ इवेंट दैट आई वाज इनटू। राइट. तो ऐसी स्टोरीज आपके पास भी बहुत सारी आती होंगी। बहुत सारी, बहुत So, सारी. can we hear something about a rickshaw, maybe a three-wheeler e-rickshaw partner, maybe a e-rickshaw driver, or from partner's point of view, अगर कोई ऐसा? Yeah, so I remember it was my day one at Battery Smart. मेरा पहला दिन था, and I went on field stations visit करने के लिए. And एक लेडी स्टेशन पर बैठे हुए थे, तो मैंने जाकर बोला, मैम मैं वेट करती हूँ आराम से ना, मतलब जब सर आएंगे मैं पूछूंगी उनसे. तो उन्होंने कहा सर किस लिए? तो मैंने बोला कि जो स्टेशन पे बैठते हैं मुझे उनसे बात करनी है. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ही स्टेशन चलाती हूँ. वाह। that was like so heart touching, because मतलब even like being part of Battery Smart my day one, मैं सोच रही थी कि शायद बैटरीज भारी होते हैं तो एक विमेन कैसे उठाएगी, कैसे स्टेशंस ऑपरेट करेगी, ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स स्टेशन पर आते हैं, बट दैट वाज अ लेडी रनिंग द स्टेशन. सो आई थिंक वो पहला स्टोरी था जो मैंने देखा खुद से, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे लाइक अबाउट 5 to 10% ऑफ आवर पार्टनर्स आर फीमेल्स. उसके बाद बहुत सारे ड्राइवर्स भी फीमेल्स हैं.
5 to 10% are female. Yeah. Wow, that's a big number. या सो एंड हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स भी फीमेल हैं, तो अगर मतलब वेरी रिसेंटली मुझे कोई डिलीवरी देने आया एट माय होम एंड दैट लेडी वाज यूजिंग बैटरी स्मार्ट का स्वैपिंग एज अ सर्विस बिकॉज शी इज़ अ गिग वर्कर, तो आई थिंक दैट स्टोरी यू नो और दैट नैरेटिव कि अब स्वैपिंग शायद नई यूज़ केस है और यू नो लाइक या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज आपको बैटरी रिलायबिलिटी नहीं है, रेंज एंग्जाइटी है, या फिर आपको सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और एल्स या फिर एक स्पेसिफिक जेंडर या एक स्पेसिफिक कैटेगरी और सोसाइटी ही बैटरी स्वैपिंग यूज़ करेगी। आई थिंक दैट इज़ चेंजिंग एंड दैट्स एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग। लवली। सो जब हम ईवी अडॉप्शन की बात करते हैं, तो ईवी अडॉप्शन में रेंज एंग्जाइटी वाज अ चैलेंज, राइट, right? What you mentioned, and safety was a challenge which people were seeing, या right? तो अब आपको और कौन से challenges हैं जो दिखाई देते हैं और उसको बैटरी स्मार्ट किस तरह से उसको टैकल कर रहा है? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? सो आई थिंक ऑल्सो रिलायबिलिटी लोगों को पहले चैलेंज लग रहा था, और एज रेंज एंग्जाइटी के को लेकर ही लोगों को चैलेंज था कि व्हाट इफ अगर मैं आज एक स्टेशन से शॉपिंग ले लूँ, जैसे हम रोड पे चलते हैं राइट, तो हमको पेट्रोल पंप दिख जाता है या फिर गूगल मैप्स पर भी पेट्रोल पंप है अब, तो आप देख लेते हो नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ है। वैसे आई थिंक ड्राइवर्स का पहले कंसर्न होता था कि वो आज ऑन बोर्ड तो हो जाएगा, बट अगर एक सिटी में जहाँ वो ऑन बोर्ड हो रहा है और उस सिटी में 2 ही या 3 ही बैटरी स्मार्ट के स्टेशन हैं, तो वो कैसे, बिकॉज़ जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा? तो आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज था जो हमने अपने ड्राइवर्स के लिए सॉल्व किया, बिकॉज़ हम पूरा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी सिटी में ट्रैवल कर रहा है, तो अब उसको ये नहीं होगा कि मेरे को बैटरी कब और कहाँ मिलेगी। ओके, हमने अपने ड्राइवर्स के लिए काफ़ी सारे टेक सॉल्यूशंस भी इनेबल किए, बिकॉज़ दिस इज़ अ टीजी जहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद ये टेक फर्स्ट सॉल्यूशंस मतलब क्यों बनाएँगे ड्राइवर के लिए, राइट? तो एंड ये एक सेक्टर ऐसा था और सेगमेंट ऐसा था जहाँ पे ये लोग डिजिटल पेमेंट्स भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हर बार स्वैप के लिए जाके कैश देना है, फिर चेंज माँगना है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, राइट? तो हम उनके लिए बहुत सारे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लाए। रिक्शे पे हमने बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, रिक्शे पे क्यूआर लगा दिया जहाँ पे, और या फिर टू व्हीलर पे क्यूआर लगा दिया जहाँ पे वो अपने कस्टमर से उसी क्यूआर से पैसे ले सकते हैं। वो उनका खाता क्रेडिट कर देता है और उसी पैसे से वो डायरेक्टली बैटरी स्मार्ट से स्वैप ले सकते हैं। अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, राइट? लाइकवाइज़ हमने अपने ड्राइवर्स के ऐप में उनको अपनी स्टेशन की लिस्ट दिखाई, सो दैट वो देख सके कि नेक्स्ट स्टेशन कहाँ है, उस पे कितनी चार्ज्ड बैटरी अवेलेबल है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे। तो अपना हम उसको अलर्ट्स भेजते हैं कि अब आपका शायद स्वैप लेने का टाइम आ गया है, सो दैट जस्ट इन केस ही हैज़ नॉट सीन कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर यू टू टेक अनदर। सो ऐसे बहुत ही सिंपल एंड छोटे-छोटे सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स जो हमें लगता था ड्राइवर्स को आएँगे, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। So I think that will take us long way because that's the category that we are solving for. मैं स्वैपिंग स्टेशंस को इक्विवेलेंट टू टुडेज पेट्रोल पंप्स की तरह देख रहा हूँ। Yeah, तो correct. इंडियन ऑयल, That's how we see बीपी, it as well. बीपी, Yeah. ब्रिटिश पेट्रोलियम है, मतलब Yeah. इतने सारे, एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज इन दैट सेगमेंट। बैटरी स्मार्ट, हाउ आर यू सीइंग कि 5 साल में, 6 साल में क्या कर रहा होगा? व्हाट काइंड ऑफ बैटरीज यू विल बी स्वैपिंग एंड साइज क्या होगा? I think again because हम बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी एग्नोस्टिक है। पहले we were working with NMC batteries, now we are using LFP batteries in the network. So I think as technology improves, that would help us, you know, bring down the cost, increase reliability, and so batteries हम I think हर ही तरीके की बैटरी और हर तरीके के व्हीकल जहाँ पे भी स्वैपिंग यूज केस एग्जिस्ट करता है, आई थिंक बैटरी स्मार्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पर। And I think when we talk about scale, so we have a plan to have 3,000 drivers in 3,000 station partners in say next 1 year, and about doubling the number of Doubling. drivers that we have. Mhm. And we are very confident कि वो होगा because 3 व्हीलर्स के साथ पहले हमने अकेले काम करके इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, बट जैसे जैसे अब हम 2 व्हीलर्स कैटेगरी में एक्सपैंड कर रहे हैं, सो नॉट जस्ट फ्लीट ऑपरेटर्स बट इंडिविजुअल 2 व्हीलर ओनर्स जिनका कमर्शियल यूज केस है, दे वांट टू पार्टनर विद बैटरी स्मार्ट बिकॉज उनकी अपफ्रंट ऑनबोर्डिंग कॉस्ट ऑफ ईवी बहुत ही कम हो जाती है, दैट रिड्यूसेस बाय अबाउट 40-50% क्योंकि वो बिना बैटरी के व्हीकल ले रहे होंगे। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द स्पेस टू बी, एंड the use case exists, and
थ्रू आवर सॉल्यूशंस एंड थ्रू आवर ऑफरिंग्स हम ड्राइवर्स के लिए और पार्टनर्स के लिए दोनों के लिए ही एक बहुत ही अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सिस्टम इकोसिस्टम बना रहे होंगे जिससे उनकी अर्निंग्स भी इम्प्रूव होंगी। सही है, नाइस। मेरा एक सवाल है, जो सवाल हर बार सेम रहता है, बट जवाब हर बार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फाउंडर्स डिफरेंट होते हैं राइट, एंड राइट। पीपल आर डिफरेंट। सो क्वेश्चन ये है कि स्वैपिंग वर्सेस चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जिंग, व्हिच वन इज गोइंग टू विन द गेम? और क्या ये कोएग्जिस्ट करेंगे या वन ऑफ देम विल एग्जिस्ट? हाउ डू यू सी इट? I believe they'll coexist. A reason because I think as I was saying right कि चार्ज अगर जहाँ पे भी स्वैपिंग का यूज केस होता है वो उनके अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम कर रहा है एंड स्टिल स्वैपिंग अगर चार्जिंग में अगर आपको लेट्स से इन व्हेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स अगर आपको आधा घंटा भी लग रहा है तो स्वैपिंग में 2 मिनट लगता है राइट? तो इमेजिन एक डिलीवरी पार्टनर है ही इज़ ऑन रोड टू डिलीवर पार्सल तो उसको हमेशा वो 2 मिनट वर्सेस 30 मिनट में वो 2 मिनट चूज़ कर रहा होगा। तो आई थिंक डिफरेंट यूज़ केसेस मे बी फॉर बिगर व्हीकल्स और अदर फोर व्हीलर्स एक्सेट्रा मे बी चार्जिंग स्टिल वुड एग्जिस्ट। तो आई थिंक कमर्शियल के लिए ऑलवेज स्वैपिंग वुड मेक सेंस बट high heavy vehicles और फॉर पर्सनल यूज़ केसेस जहाँ पे इंफ्रा भी नहीं है लोगों के पास घर पे चार्ज करने के लिए प्रॉपर सेफ्टी इंफ्रा नहीं है सो आई थिंक फॉर देम चार्जिंग माइट स्टिल मेक सेंस बिकॉज जहाँ पर भी वो फीलिंग होता है कि उन्हें बैटरी ओन करनी है या फिर उनका डेली का रन रेट इतना है कि वन चार्ज में वो मे बी पूरा डे सस्टेन कर ले तो आई थिंक फॉर देम मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम व्हेन वी हैव फास्ट चार्जिंग उनके लिए चार्जिंग स्टिल सेंस बना सकता है मे बी इन सम फ्यूचर। या ओके। सो मान लीजिए मैं बैटरी स्वैप करने के लिए जाता हूँ, तो राइट। मेरे मन में रहेगा कि मैंने एक बैटरी दी है और ये तो 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी चल गई। दूसरी बैटरी मैं जो ले रहा हूँ उसकी हेल्थ सेम होगी या नहीं होगी? हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट? क्या उसके लिए कोई एल्गोरिदम या मैथ्स कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया? राइट सो हम एज आई वाज सेइंग राइट हमारे सारे बैटरीज बीएमएस मॉनिटर्ड होते हैं तो हमें सारे बैटरीज का एसओसी एसओएच स्टेट ऑफ हेल्थ स्टेट ऑफ चार्ज पता होता है और हम इंश्योर करते हैं कि जो बैटरी अब हमें लगता है कि अनफिट फॉर से स्वैपिंग है या फिर इसकी रेंज कम आएगी हम उन बैटरीज को दो अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारी बैटरीज नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज बट हम ऐसी बैटरीज को रिटायर करते हैं अगर टेम्परेरी कोई इशू आया है किसी बैटरी में वी send it back to the OEM. We do a proactive recall as well, जिससे हम वो बैटरी वापस OEMs को भेजते हैं रिपेयर मेंटेनेंस जो नीडेड होता है ऑन आर वेयर हाउस या फिर ऑन OEM मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हम वो कराते हैं सो आई थिंक उससे ड्राइवर्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि कोई भी बैटरी हो जब वो बैटरी ले रहे होते हैं तो उनको दिखता है कि 100% चार्ज है या 90% चार्ज है और उन्हें कंसिस्टेंट अक्रॉस द नेटवर्क हर स्टेशन पे डिफरेंट OEM बैटरी वो सिमिलर रेंज मिल रही है बिकॉज आफ्टर लॉट ऑफ एग्जॉस्टिव टेस्टिंग एंड इन प्रीएम्प्टिव रिपेयर मेंटेनेंस रिकॉल्स हम वो इंश्योर कर पा रहे हैं तो आई थिंक ड्राइवर्स और पार्टनर्स के लिए वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। नाइस, सही है। इंडिया में ईवी का एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है एंड एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हमने ईवी के लिए सेट किए हैं इंडिया में, राइट? तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं एडॉप्शन के लिए, राइट? सो राइट स्टिल बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्टिल हाउ डज बैटरी स्मार्ट सी कि अगर ये 2-3 पॉलिसीज अगर इम्प्लीमेंट हो जाएँ, तो बहुत सारा हेल्प हो जाएगा ईवी के एडॉप्शंस के लिए, तो इज़ देयर समथिंग? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट आई थिंक काफ़ी सारे पॉलिसीज़ और इंफ्रा चेंजेस जो गवर्नमेंट कर रही है या फिर जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है उससे काफ़ी ऑलरेडी स्वैपिंग एक वाइबल ऑप्शन और एक इकोसिस्टम ग्रो हुआ है तो आई थिंक थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑन दैट बट आई थिंक हैविंग सेड दैट जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स ऑन ईदर बाइंग अ व्हीकल विदाउट बैटरी और बाइंग अ बैटरी एज अ होल I think that would help again reduce upfront cost for the organizations who are procuring batteries for different use cases and also for the end user as well. And local improving urban logistics, parkings, and things like that, and bringing local policies and that building that synergies कि discoms अब enough load लगा पा रहे हैं हम stations के लिए या फिर enough charging के लिए spaces, green zones available हैं. So I think that would help, build this ecosystem further. Not just I think for battery smart, but holistically across India. अक्रॉस द ईवी इंडस्ट्री। Yeah. ओके। काफ़ी एडवांस्ड डिफरेंट केमिस्ट्रीज ऑफ बैटरीज सेल्स हम लोग देख रहे आ रहे हैं। सोडियम आयन बैटरीज हैं,
and we are seeing LMFP batteries are coming Right. up. So how are you ensuring कि latest technology customers के लिए available हो? So I think when the transition happened from NMC to LFP, we got on that bandwagon and ensured that because they are a lot safer, Hmm. thermal stability ज़्यादा है, cost relatively better है, we do that. But other technologies like solid state batteries or sodium ion batteries, अभी they are still not that matured so Hmm. as to do a mass you know in adopt in masses. Hmm. I think, but when that happens, whenever that happens, I think we'll be like accepting that with open arms because जितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्टेबल और जितनी कम कॉस्ट पे आएगा हम उतना ही उसे अफोर्डेबल टू आवर एंड कस्टमर बना पाएंगे. सो आई थिंक whenever that happens we will be very very flexible to Yes. adopt that as well. And also, I think that when you are not into manufacturing, it is Yeah, easy it for becomes you to super easy for us to make get that adapted. transition, yeah, and adopt any new technology. So, Sumi, what we have seen is कि when a business is running on a franchisee model, we have seen that a lot of attrition happens among the partners. Partners onboarding हो रही है एक तरफ offboarding हो रही है, Right. right? तो आपका जो इकोसिस्टम है ड्राइवर पार्टनर्स का और स्टेशन पार्टनर्स का, उसके बारे में थोड़ा बताएं. उनको आप मोटिवेटेड रखते हो, कैसे एंगेज रखते हो, और वो ड्राइवर पार्टनर्स और स्टेशन पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा होता है? डू Right. यू हैव सम सिस्टम एंड प्रोसेस इन प्लेस? Yeah, so I think हम फ्रेंचाइजी से वी आर ऑन अ 3 or 4 year कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ फ्रेंचाइजी. सो जो हमारे फर्स्ट फ्यू पार्टनर्स हैं जिन्होंने 3 years वेरी रिसेंटली इन 2025 कंप्लीट किए हैं, सारे मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैव लाइक रिन्यूड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस. हम पार्टनर्स के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स करते हैं. सो अदर देन इंश्योरिंग दैट कि वो सिर्फ सॉप रेवेन्यू से कमा रहे हैं, हम उनके लिए काफ़ी सारे और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो हमें ड्राइवर्स को रेफ़र करके दे कैन अर्न विद अस. ड्राइवर के कुछ लेट्स से ड्राइवर के लिए कोई सर्विसेज़ सॉल्व करके उसका व्हीकल रिपेयर करके व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ बैटरी स्मार्ट, ओके. दे अर्न फ्रॉम द ड्राइवर्स एज़ वेल. हुँ. एंड अदर देन जस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, हम पार्टनर्स के लिए काफ़ी सारे कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स भी करते हैं. बिकॉज़ फॉर अस एट बैटरी स्मार्ट, पार्टनर्स और ड्राइवर्स की वॉइस हमारे लिए और इंश्योरिंग कि उनका एनपीएस अच्छा है, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. हम अपने पार्टनर्स के लिए वी कॉल इट पार्टनर सम्मेलन्स. हम अपने पार्टनर्स के लिए वी कीप ऑन डूइंग पार्टनर सम्मेलन्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया. हम ऑनलाइन टाउन हॉल्स करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ सो दैट वी ऑलवेज हियर देयर फीडबैक, किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अदर इनिशिएटिव्स लाइक उनके लिए इंश्योरेंस लेके आना, प्रीमाइस का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस लेके आना. हुँ. ऑल्सो लाइक एनेबलिंग, लाइक बिकमिंग एन एनेबलर, जहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जांपल नई सिटीज़ में अगर हम ओपन कर रहे हैं तो किसी फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए जगह ढूँढने में उसकी हेल्प करना, डिस्कॉम के साथ कोलैबोरेट करके उसके स्टेशन पे लोड लगवाना. सो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम अपने फ्रेंचाइज़ीज़ के साथ कर रहे हैं सो एज़ टू इंश्योर दैट दे फील मोर एंगेज्ड एंड एम्पावर्ड. हम उनके लिए कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उनके ऐप पे नए-नए फीचर्स, ट्रेनिंग वीडियोज़ इंश्योरिंग कि वो हमारे लिए उनका सपोर्ट विद बैटरी स्मार्ट इज़ वेरी सीमलेस. तो आज हमें हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमें ईमेल, व्हाट्सएप, हमारे सपोर्ट सेंटर, इन ऐप सपोर्ट, हर तरीके से रीच आउट कर सकते हैं. सो आई थिंक ये पार्टनर्स इकोसिस्टम में भी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि ठीक है, दे आर एबल टू वर्क विद बैटरी स्मार्ट. अगर उनकी बैटरी या चार्जर में कोई इशू हुँ. आता है, थ्रू देयर ऐप इटसेल्फ वो उसे सर्विस में मूव कर सकते हैं. आवर फील्ड टीम विल गो एंड रिप्लेस देयर बैटरीज एंड चार्जर्स. हुँ. आई थिंक दैट्स हाउ विद पार्टनर्स में ट्रस्ट और अ कम्युनिटी हम बिल्ड कर पाए हैं. अदर देन दैट फॉर ड्राइवर्स एज़ वेल, लाइक आई सेड राइट, हम ड्राइवर्स का फीडबैक लेने के लिए टू लिसन टू देयर वॉइस, हम ड्राइवर्स के साथ बहुत सारे संवाद करते हैं वेयर इन वी मीट अ ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स. हम उनसे समझते हैं किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं. हुँ. उनके लिए इंश्योरेंस लेके आना, उनके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करके ट्रैफिक कैंप्स लगाना, व्हीकल फिटनेस कैंप्स लगाना, ये सब भी करते हैं.
ड्राइवर्स के लिए भी हमने ऐसे सिमिलर सर्विसेज बनाए हैं जहाँ पे ड्राइवर्स अपने ऐप के थ्रू हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं। एक सर्विस सेंटर हमने जो हमारा सपोर्ट सेंटर है, वी कॉल इट डीएससी, वहाँ पे वो हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ कॉल सेंटर और अ व्हाट्सएप सपोर्ट। वी हैव इनेबल्ड ड्राइवर सेवा केंद्र्स एज वेल, हुँ, विच आर आवर पार्टनर स्टेशंस ओनली सर्विंग एज अ सेवा केंद्र फॉर आवर ड्राइवर्स, हुँ, हुँ, बिकॉज दे आर द डेली टच पॉइंट, राइट? वो उनको सॉप्स लेने के लिए उस स्टेशन पर जा रहे हैं, डे टू हुँ, डे इंगेजमेंट उस पार्टनर के साथ कर रहे हैं। तो अगर वो छुट्टी पे जा रहे हैं या फिर अपने थोड़े टाइम के लिए गाँव चले जाते हैं, बिकॉज़ ये गिग वर्कर्स ड्यूरिंग हुँ, फेस्टिवल्स या हुँ, फिर ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीज़न्स हुँ, दे माइग्रेट बैक टू देयर होम टाउन्स, तो वो अपनी बैटरी छोड़ के जा सकते हैं। उन्हें कोई इश्यू आ रहा है तो पार्टनर के थ्रू बैटरी स्मार्ट को भी रीच आउट कर सकते हैं। आई थिंक ऐसे सारे इनिशिएटिव से वी हैव बीन एबल टू क्रिएट दैट हुक। पार्टनर्स और ड्राइवर्स आपस में भी एंगेज करते हैं, तो बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमारे कुछ पार्टनर्स जब सर्दी होती है तो हम उनके स्टेशंस विज़िट करते हैं, तो उन्होंने कुछ कॉफ़ी या चाय की मशीन्स लगा रखी होती हैं अपने ड्राइवर्स के लिए। क्या बात है! सिमिलरली जब गर्मी आती है तो हम देखते हैं वाटर डिस्पेंसर्स लगा दिए हैं उन्होंने, बिकॉज़ वो ड्राइवर उसके यहाँ आ रहा है, डेली स्वैप ले रहा है, तो उनका भी कनेक्ट बन जाता है। तो बहुत सारे ड्राइवर्स बैटरी स्मार्ट को, बिकॉज़ वो डेली मोस्टली वही 2-3 स्टेशंस उसके रूट पे जो पड़ते हैं उनसे स्वैप ले रहा होता है, राइट? तो वो बैटरी स्मार्ट को थ्रू दोज़ पार्टनर्स ही जानता है कि ये स्टेशंस हैं जहाँ से मैं स्वैप लेता हूँ। तो वो पार्टनर और ड्राइवर का कनेक्ट, एन्श्योरिंग कि पार्टनर्स हमारे सारे ड्राइवर्स को बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हैं, सबको इक्वल सर्विस दे रहे हैं। हम अपने सारे पार्टनर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडवाइस करते हैं। तो ड्राइवर्स को भी पता है, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, शायद हम नहीं हुँ, हुँ, बिलीव हुँ, कर पाते, राइट? हुँ, कि अ, बहुत नीश कैटेगरी है, बट क्यों धक्का-मुक्की नहीं करेगी अगर भीड़ वाला टाइम है। बट अगर आप ओके, बैटरी स्मार्ट के किसी स्टेशन पे जाएँगे तो आपको दिखेगा कि अगर रश आवर है या फिर कहीं बिकॉज़ ऑफ टियर 3 टाउन में कभी कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और थोड़ा-सा वेटिंग टाइम है 4-5 मिनट का, तो वो लाइन से खड़े होते हैं अपनी बैटरीज़ लेके। देयर ओके, इज़ अ डिसिप्लिन और अ डेकोरम दैट दे मेंटेन एट द हुँ, स्टेशन। तो इट इज़ ऑल इंस्पायरिंग टू सी कि सिस्टम कैसे अपना इक्विलिब्रियम, यू नो, थ्रू स्मॉल स्मॉल इनिशिएटिव्स, टेक ड्रिवन, सेफ्टी ड्रिवन, ट्रेनिंग बेस्ड, वो अपना इक्विलिब्रियम आपस में बिल्ड हो जाता है। वॉव! मतलब व्हाट आई एम एबल टू टच सी दैट कि अगर कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, a या lot of things need to be done, या lot of thoughts behind each of the thing whatever you're doing. मतलब amazing, मतलब I can feel what kind of work it goes to build Battery Smart, right? या वी आर लर्निंग ईच डे, सो हम एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, Hmm. राइट? ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल से बताऊँ तो मैंने ओयो में काम किया है, होटल्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। Hmm. फिर मैंने ऊबर में काम किया तो कैब्स और टैक्सीज हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। फिर जब मैं बैटरी स्मार्ट आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशंस, कोई रूल बुक नहीं है, राइट? कि Hmm. इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, ऐसे ही कर सकते हैं। Hmm. तो आई थिंक वी हैव बीन बेस्ड ऑन कि पार्टनर्स का फीडबैक क्या आ रहा है, ड्राइवर्स का फीडबैक क्या आ रहा है, इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे आ रहे हैं, ओईएम से मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेंज हो रही है। तो आई थिंक हमने भी बहुत सारे हिट्स एंड मिसेस से वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई थिंक especially when we say, I think team is also a secret ingredient. Hmm. All of us work with the same DNA of safety, same DNA of problem solving. So I think that's how we have been able to build whatever we have built, right? Great, So great. yeah. जब आप टियर 1 में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, काम करना कंपैरेटिवली ईज़ी है। जब आप टियर 2 में और टियर 3 में जाते हैं, तो वहाँ जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग क्योंकि आई कैन जस्ट अज्यूम कि वहाँ डिफ़िकल्टी आती होगी, तो किस तरह की डिफ़िकल्टी आती हैं और आप किस तरह से उनको ओवरकम करते हैं? I think इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ राइट, एंड अदर थिंग्स? इनिशियली बिकॉज हमारे बहुत सारे सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? जब भी हम एक स्टेशन को ऑनबोर्ड करते हैं हमारे बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगे कि इतना बड़ा स्पेस चाहिए या फिर वॉल्स इतने थिकनेस के होने चाहिए, रूफ ऐसी होनी चाहिए। तो आई थिंक इनिशियली थोड़ा फ्रिक्शन आता है, राइट? टियर 2 टियर 3 में कि हमें जिस डेजिग्नेटेड स्पॉट पे हमें पता है ड्राइवर्स को स्टेशन चाहिए होंगे, वहाँ पे गेटिंग द राइट सॉर्ट ऑफ इंफ्रा, इंश्योरिंग की लोड अवेलेबल होगा, वो इनिशियल थोड़े चैलेंजेस आते हैं। बट आई थिंक ओवर द टाइम, बिकॉज हम हर सिटी में अपनी लोकल टीम डिप्लॉय करते हैं जो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के साथ या फिर लोकल पीपल के साथ दे कोलैबोरेट, हुँ, तो हम राइट स्टेशंस विद राइट इंफ्रा विद राइट लोड सेटअप कर पाते हैं। एंड आई थिंक ड्राइवर्स ऑल्सो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पुल बहुत ज़्यादा है, राइट? हुँ,
छोटे सिटीज़ में ड्राइवर्स को थोड़ा इनिशियली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ऑन बोर्ड होने में। उन्हें बट धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि स्वैपिंग बिकॉज़ उन वो देखते हैं कि उनका दोस्त जो ऑन बोर्ड हुआ है उसकी अर्निंग बढ़ गई है, राइट? वो 3 घंटे के लिए घर पे बैटरी चार्ज करने जाता है, उस 3 घंटे में ये बंदा तो कमा रहा है। तो ऑटोमैटिकली आई थिंक वो शिफ्ट आता है साइकोलॉजिकल कि जब उसको लगता है कि अच्छा दिस इज़ समथिंग जो मुझे यूज़ करना है। हुँ, सो आई थिंक दैट्स हाउ टियर 2 टियर 3 में इट इज़ वन वेरी बिग मिथ कि लोगों को लगता है कि स्वैपिंग इज़ फॉर मेट्रोज़ और टियर 1 हुँ। बट हमारे लाइक आई वुड से ओवर 50% business that we do right now at the moment is happening not in metros, not in tier 1 but tier 2, tier 3 and tier 4 अच्छा, as well, वाओ! right? दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट पीपल वुड कम टू Yeah. नो, राइट? सही है। सो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बैटरी स्वैपिंग जो है वो मोबिलिटी से बीएसएस की तरफ इवॉल्व हो रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो आई थिंक जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं वो बिकॉज मोबिलिटी का जो यूज़ केस है वेर इन लोगों को जल्दी चार्ज बैटरी चाहिए। सो आई थिंक स्वैपिंग हमेशा एक यूज़ केस रहेगा बट बी एस एस वेर इन बहुत सारे अदर यूज़ केसेस हैं जहाँ पे किसी को अगर बैटरी चार्ज करनी है या फिर बी एस एस एज एन ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स यूज़ करना है जहाँ पे बैटरीज ईदर लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर आफ्टर द सेकेंड लाइफ और व्हेन दे रीच दैट रिसाइकलिंग स्टेज जब पहुँच जाएंगी तो वही की वही बैटरी इकोसिस्टम जो शायद शॉपिंग के लिए बिल्ड हुआ है वो बीएसएस में ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज हाउ इंडस्ट्री इज गोना इवॉल्व। या सो सुमी, इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है कि क्या एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इंडियन गवर्नमेंट को सेट कर देना चाहिए और सब लोग उसको फॉलो करें, या इनोवेशन के लिए कुछ जगह छोड़ देनी चाहिए? I think because EV ecosystem is evolving, right? We have not yet reached that stage जहाँ पे the system is matured enough to have one universal battery or one size fits all sort of setup. So I think we are still not that matured wherein we would say that one universal battery is something that we should have. So we should, I think, as far as I am able to see, interoperability is at least the present and the near It will future. take some time. Yeah. Okay. Yeah. And we have seen, I have visited China a few times, and I've Yeah. seen that there's a very deep penetration of EV Right. adaptability there. So, what is practically that we see that we can learn from this country? How do you see that? So I think what we adopted from China as well is I think building at scale Hmm. because unless and until आपके ड्राइवर को वो नेटवर्क दिख रहा होगा उसके लिए ऑन बोर्डिंग फ्रिक्शन रहेगा बिकॉज रेंज एंग्जाइटी उसका स्टिल कंसर्न रहेगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी हैव अडॉप्टेड एज वेल इन इवन अदर कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अदर अफ्रीकन कंट्रीज कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट। So whenever you are trying to build for like a demographics like say China or India or other bigger countries, so I think adopting at scale is something that is very very critical. Second is because you would want to serve as many different type of vehicles, be it three-wheeler, two-wheeler. In China, there is four-wheeler swapping as well that happens. So I think again interoperability, when building at scale, to collaborating with different OEMs, not getting into battery manufacturing directly. I think that is something that we adopted from China as well, and that has helped us scale. And Battlesmart doing everything at a scale right now. Yeah. So, what are other countries that they can learn from Indian operations right now? So I think other Southeast Asian countries, other African countries with similar demographics and scale, right? They should be thinking. I think this is the right point for anybody and everybody to, think about clean energy, making a more sustainable ecosystem. Think about planet as well, and that's where we can because gig economy or e-commerce is shaping up in other parts of the world and as they scale, I think proportionately, swapping also scales because that's how you can give them more time on road, make their earning better. So I think that's how it should be adopted in other countries as well. I think scale and also ensuring that all the different type of vehicles, whatever they can serve through swapping, wherever there is a commercial use case, they should adopt for it. सही है। सो एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि बीइंग अ वुमन इन Right. द ईवी इंडस्ट्री एंड
particularly in a segment wherein there are partners like e-rickshaw drivers are engaged into the Right. system, and you might be traveling to the places and try to understand problems directly from the e-rickshaw drivers. Right. So do you think it is difficult, it is a difficult job that you have taken, or is it something motivating is there? So we want to understand your perspective about this. I think from an outsider, do get that question like a lot. I think, but I would say that in my first, few questions only I told you, right. जब हमारे partners और हमारे drivers ही female हो रहे हैं, they are not अच्छा। concerned about कि कैसा industry है, कैसा space है. So I think for me leading this network, I think it has been a very fulfilling and motivating experience so far, because I would say that जब मैं भी जाके पार्टनर से बात करती हूँ या फिर ई रिक्शा ड्राइवर से बात करती हूँ, राइट, अनलाइक द परसेप्शन दैट वी हैव, वो बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हम्म। हैं. आई थिंक वन वैल्यू दैट वी हैव कॉमन, we grow up with in India, is respect. हम्म। Treating other gender with respect. So I think I have seen even that value in the rickshaw drivers or partners. तो मैं जब भी जाती हूँ, बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं. So I don't see that as a challenge. So I would encourage other females also to take that up. Very recently, I was in one of the premier institutes of India, in one of the IITs. I was taking interviews. One girl, after the interview, she came to me, right, and she said कि मेरे तो बहुत मन है ज्वाइन करने का, but you tell me, maybe my parents will not agree कि जिस तरीके का इंडस्ट्री है या जिस तरीके का आपका कस्टमर सेगमेंट है, शायद वो मुझे नहीं जॉइन करने देंगे. तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, राइट? आपने अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया दैट यू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन? सो आई टोल्ड हर एग्जैक्टली माई स्टोरी, राइट, कि जब हमारे पार्टनर्स वो कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर्स वो कर पा रहे हैं, हम्म। you can see me and other battery smart female employees or other employees in female employees in similar industry, right? If they can do it, I'm sure you can. So I would encourage other female counterparts and other Gen Zs who are sort of seeing EV as a FOMO, that they should probably just get on this bandwagon. It's हम्म। super exciting and fulfilling, Yeah. and should not be left behind just concerning that might not be an industry fit. Nice. And when you get on the ground, get that touch and feel of whatever the change is happening, that's really exciting, I think so. Yeah, it is exciting and fulfilling at the same time, right? Because I live in Delhi NCR, we all know about pollution, right? Mm. तो एक वो satisfaction है कि maybe in whatever small big ways you're contributing to, say, a cleaner energy, or contributing to a better sustainable ecosystem, and also bringing a change in life of a lot of our customers and partners as well, right? Their earnings are improving, how they operate on a day-to-day basis is changing. So I think that is very fulfilling and exciting, I would say. Nice. Say. So me around 1.5 years back, not Yeah. 1 year, around 2 years back, I went to a बैटरी स्मार्ट का स्टेशन Right. एंड मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैटरी स्मार्ट की जो बैटरी है उसको वायर से वो उठा रहे थे, विच इज़ नॉट राइट वे, राइट? Right. अभी हम क्या देखते हैं कि बैटरी स्मार्ट के मॉडल में बहुत सारे हैंड्स में बैटरी जाती है, Right. राइट? तो क्या हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आप लोग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कैसे करते हैं उसको? इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू मैनेज क्योंकि Yeah. बैटरीज है सेंसिटिव। करेक्ट. सो आई थिंक अब हम जब भी एक ड्राइवर ऑन बोर्ड कर रहे हैं, राइट, तो हम एक ड्राइवर को एक बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ ऑन बोर्ड करते हैं कि ड्यूरिंग द सर्विस ऑल्सो, जब भी ड्राइवर्स के जो भी टच पॉइंट्स हैं या तो फिर पार्टनर स्टेशन, हम ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि डे टू डे उन्हें बैटरीज कैसे मैनेज करना है. सारे बैटरीज हमारे हैंडल होता है बैटरी में, तो वेन एवर ड्राइवर्स आर पुलिंग आउट द बैटरीज आउट ऑफ से देयर टू व्हीलर्स और ई रिक्शाज, वो हैंडल के साथ बैटरी उठा रहे होते हैं. एंड इनफैक्ट हमारी टीम फॉर स्टेशन पार्टनर्स एज वेल काफ़ी सारे सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑडिट रेगुलरली करती है. तो जब भी अगर उन्हें कोई ऐसा बैटरी मिलता है जो मे बी फिट टू यूज़ नहीं है, या फिर से जिसका अगर कोई हैंडल डैमेज्ड है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है दैट नीड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या तो हमारी जो फील्ड टीम है उसे ऑन स्टेशन रिपेयर करती है, या फिर वी ब्रिंग इट बैक टू द वेयर हाउस एंड वी इंश्योर दैट दैट बैटरी इज़ रिपेयर्ड. काफ़ी सारे सेफ्टी डूज एंड डोंट्स एंड
गाइडलाइंस दोनों ही हमारे पार्टनर और ड्राइवर के लिए वी हैव बीन एबल टू क्रिएट। जैसे बहुत ही सिंपल एक गाइडलाइन है, राइट, कि बैटरी जब भी स्टेशन पे आएगी पहले पार्टनर्स उसे कूल डाउन होने देंगे बिकॉज वो बैटरी यूज़ होके आई है, एंड फिर उसे चार्जिंग में लगाएंगे। तो हम अपने पार्टनर्स को ऐसे सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस थ्रू पोस्टर्स, थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन, उनके ऐप पे वीडियोस, क्विजेस, ट्रिवियाज, इनके थ्रू बार बार रीअश्योर करते हैं कि पार्टनर्स को ये पता है। हमारे जब भी कोई पार्टनर स्टेशन पे, लेट्स से बहुत सारे पार्टनर स्टेशंस ऑपरेटर रन होते हैं जहाँ पे वो कोई ऑपरेटर डे टू डे ऑपरेशंस कर रहा है स्टेशन पे, तो हम बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस हम हर न्यू ऑपरेटर की इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है through our team, through their app, through communication, so that they know what safety protocols or battery handling protocols they should be following. सही। और जब आप टियर 2 टियर 3 में जाते हैं और Mhm. ड्राइवर जो ई-रिक्शा ड्राइवर है सपोज़ उनसे आप डील करते हो तो बिहेवियरल बैरियर्स आपको क्या फ़ील होते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई थिंक स्पेसिफिकली टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में एक वो शिफ्ट आया है जहाँ पे पहले ड्राइवर्स का था कि उन्हें बैटरी ओनरशिप चाहिए, हुँ। बिकॉज स्वैपिंग में तो डे वन से दे आर इनटू स्वैपिंग एंड दैट दे आर नॉट ओनिंग द बैटरीज, राइट। तो वो शिफ्ट हुआ है बिकॉज़ अब उनका इनिशियल ऑनबोर्डिंग फ्रिक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग लो है, डे 1 से दे कैन मूव टू स्वैपिंग। बट टू आल्सो सॉल्व फॉर यूज़ केस जहाँ पे एक ड्राइवर का डेली रन रेट कम है, वी हैव डाइवर्सिफाइड एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ऑफरिंग टू दैट सेगमेंट व्हिच इज़ बैटरी एज़ अ सर्विस, हुँ, जहाँ पे ड्राइवर्स हमसे बैटरी रेंट पर भी लेके और अपने स्वैप ऑपरेशंस कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन क्लेम द ओनरशिप ऑफ दैट बैटरी इफ दे आर लॉन्ग इनफ इन द सिस्टम एज़ वेल। So I think ओनरशिप वाज़ वन। डिजिटल पेमेंट इनिशियली थोड़ा फ्रिक्शन था, बट हमने थ्रू क्यूआर कोड्स और स्मार्ट कार्ड्स, हमने अपने ड्राइवर्स को स्मार्ट कार्ड दिए हैं। वो स्टेशन पे जाके एक एनएफसी मशीन पे टैप करके अपना कार्ड यूज़ करके, लाइक एनी अदर मेट्रो कार्ड, हुँ, राइट, हुँ, वो हुँ। उस डिजिटल करेंसी को यूज़ करके स्वैप ले सकते हैं। तो ऐसे हमने छोटे-छोटे एंड वेरी सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़ इनिशिएटिव से जो भी उन ड्राइवर्स के फ्रिक्शंस थे या इश्यूज थे, दैट वी हैव बीन एबल टू सॉल्व इन टियर 2 टियर 3 एज़ वेल। Great, great, lovely. So it was very interesting conversation with you, Sumi. I think that whatever work is being done, it's really a lot of thought goes behind each kind of whatever steps you are taking, राइट। and it takes a lot of hard work. Obviously, what kind of work Battery Smart team is doing. I think it is a very valuable conversation that we have had, and it will be valuable for the audience also. Right? I Thank think you. thanks Sachin, thanks for hosting me and giving me a platform wherein बैटरी शॉपिंग के बारे में आई थिंक और लोगों को, आपके और ऑडियंस को पता चल पाए कि हम क्या बना रहे हैं। आई एम श्योर दिस मैसेज विल रीच ऑन टू मैनी एंड वी विल बी एबल टू मेक दिस इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल एंड Yes. डू समथिंग बेटर फॉर द प्लैनेट।